Welcome to the next video of real numbers. In today's video, we will learn something about the decimal expansion of a rational number. Okay, so basically when we talk about rational numbers, there are three theorems related to the decimal expansion. Let's learn. First, let x be any rational number whose decimal expansion terminates. टर्मिनेट्स मीन्स उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि जैसे कि अगर आप 3/8 को डिवाइड करके देखोगे तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो 0.375 आता है, यानी कि वो रुक जाता है, चलता नहीं रहता. ओके, then x can be expressed in the form of p by q where p and q both are co-prime. So again you know co-prime means other than 1, कोई common factor नहीं. एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी कि अगर आप डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m आएगी, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ये भी, यानी कि 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर समथिंग भी आ सकती है, या 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर 0 भी आ सकती है. यू नो दैट एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n or 2 to the power m or both. Okay, so example I have already given you कि 0.375 ये एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो टर्मिनेट करता है. तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 375/100 आएगा, जिसको मैं फर्दर कन्वर्ट करूँ, अगर फैक्टराइज करूँ तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3 to the power 8. यानी कि चेक करो इसका जो डिनोमिनेटर है उसका जो वो बन रहा है, फैक्टर्स बन रहे हैं, वो 2 to the power 3 into 5 to the power 0 बन रहा है, this form. So any terminating decimal expansion can be expressed in the form जिसके फैक्टर्स इस फॉर्म में है अगर p and q को प्राइम है. थ्योरम नंबर 1.6 भी सेम ही चीज स्टेट करता है, जस्ट इन अ लिटिल ऑपोजिट फॉर्म. ये बोलता है कि रैशनल नंबर का फैक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए डिनोमिनेटर के. ये बोलता है कि अगर factors of the denominator is in the form of this, then it terminates. So it is just the one thing is said but in another way. Okay, so this talks about the decimal expansion जो कि terminate कर जाती है, और this talks about कि उसके factors की जो उसका जो denominator होता है उसका factorization किस form में होता है. Now it might be possible that for any rational number p by q, where p and q are co-prime, the q is not in the form of this. अगर q not in the form of 2 to the power n into 5 to the power m होगा, then x has a expansion which is non-terminating repeating, मतलब reoccurring. आपने वो बार वाले नंबर्स देखे हैं ना, जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो सपोज 0.3333 आता है, so these are reoccurring decimal expansions, right? So non-terminating repeating. Okay, so non-terminating भी है और repeating decimal expansion भी है. So basically rational number के दो expansions हो सकते हैं, एक terminating और एक non-terminating repeating. All right, एक एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 1/7. तो अगर आप 1/7 को डिवाइड करोगे तो 0.142857 एंड अगेन 1 से रिपीट होना शुरू हो जाएगा. सो दिस इज हाउ द एंड चेक द डिनोमिनेटर. इसका जो डिनोमिनेटर है उसका जो फैक्टर्स है वो क्या है, 1/7. 1 एंड 7 आर ऑलरेडी को प्राइम, सो q जो है वो 7 है. 7 के फैक्टर्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m. So that is why it is a non-terminating repeating decimal expansion. Let's talk about कि ये लगेगा कैसे. Suppose exercise 1.4 करना है, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. And question number 2 भी इसी का further है कि अगर write down the decimal expansion for those rational numbers which are terminating. जो terminating है उसका decimal expansion लिखो. So let's talk about the first question. चेक करिए 13/3125. सो सबसे पहले जो हमें चेक करना है वो ये चेक करना है कि जो 13/3125 है चिल्ड्रन, इट इज अ को प्राइम, राइट. दोनों जो नंबर्स हैं वो को प्राइम है, यानी कि कैंसिल आउट नहीं होते. तो हमारा जो q है दैट इज 3125. इसके फैक्टर्स करो जो कि 5 का, अगेन आपको 5 to the power 5 दिख रहा है, सॉरी 2 2 5 5 25, राइट.
into, can I say it is 2 to the power 0? So since the denominator is in the form of 2 to the power n into 5 to the power m, so which kind of decimal expansion it is? It is terminating. Ab terminating decimal expansion. Now after finding out that it is terminating decimal expansion, हमें find भी करना है. तो कैसे कर सकते हैं? इसको 5 to the power 5 लिख सकते हैं children denominator को, और इसको without, हमें division नहीं करना है. तो can I convert this denominator? मैं मुझे division का basically क्या, मैं उसे विदाउट एक्चुअल डिविजन, मतलब मुझे इसे एक्चुअली डिवाइड करे बिना, तो उसका मेथड क्या है? नीचे 10 के पावर्स बना लो और फिर हम डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर देंगे. सो अगर हम नीचे 10 के पावर्स बनाएंगे तो मुझे 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस चिल्ड्रन, और क्योंकि मुझे उसे 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर आएगा 416 और नीचे आएगा 10 टू द पावर 5. सो मुझे डिवाइड करना आता ही है, तो 0.0 मतलब मुझे पॉइंट लगाना आता है 416. दिस इज माई आंसर. सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड. तो बेसिकली मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को 10 के पावर्स में कन्वर्ट कर लिया ताकि मुझे एक्चुअल डिवीजन ना परफॉर्म करना पड़े. अदरवाइज मुझे 13 डिवाइडेड बाई 3125 करना पड़ता, जिसको मैं बहुत लंबा हो जाता और जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता. सो मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज ईजियर देन डिविजन. सो वी हैव अप्लाइड दैट फंडा. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन. अगेन 17/8 दोनों को प्राइम नंबर्स हैं. अगेन फैक्टर्स देखो, डिनोमिनेटर के q जो है वो 8 है. 8 के फैक्टर्स कैसे लिखे जा सकते हैं? 2 की पावर 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0. सो येस, अगेन जो डिनोमिनेटर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस. सो अगेन विच काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन? टर्मिनेटिंग. सो अगेन टर्मिनेटिंग है. अब 17/2 टू द पावर 3. अब मुझे इसे अगर उसको डिवीजन, मतलब इसका विदाउट डिवीजन मुझे इसको दिखाना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, तो नीचे 2 टू द पावर 3 है तो मैं 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि मेरे पास 10 की पावर 3 आ जाए डिनोमिनेटर में. और न्यूमरेटर तो आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, आप कैसे करोगे, राइट? ओके चिल्ड्रन, so this you will multiply and whatever you, let's do the multiplication and check कि हमारे पास क्या आ रहा है. so 5 की क्यूब हमें पता ही होती है, राइट? 125 इंटू 17 आप कर लीजिए, दैट इज 2125 डिवाइडेड बाय दिस आएगा तो यानी कि 2.125. दैट्स माई, without actually performing division I have calculated. This is how you will do it. Now let's talk about, check this fourth part. Let me do the fourth part. 15/1600. Again it is a co-prime number. Are they co-prime? 15 और 1600? No, 5 से cancel out होंगे. So 5 3s are 15, 5 3s are 15, 5 2s are 10. So now 3/320. Now you will do, q is 320. Do the factorization of 320. आपको आता ही है. 2 2 1 is 2, 2 6 are 12, 0, 2 8 are 0, 2 4 are 0, 2 then 2 2 and 5. So क्या आया? 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 की पावर 1. सो अगेन वो इस फॉर्म में आया है, दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग. 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, इट इज टर्मिनेटिंग. अगेन टर्मिनेटिंग है तो अगेन आपको कैसे कन्वर्जन करना है? अगेन आपको पता ही है, आप इसे लिखोगे 3 2 टू द पावर 6 इंटू 5, और हमें नीचे हाईएस्ट पावर यानी कि 2 टू द पावर 6 है तो मुझे 5 की पावर भी 6 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 5 टू द पावर 5 से. अगेन डिनोमिनेटर तो हमें आता ही है, हमारे पास 10 टू द पावर 6 बन जाएगा. न्यूमरेटर वी कैन मल्टीप्लाई एंड देन वी कैन जस्ट पुट द डेसिमल पॉइंट. ओके, बट यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे. चेक करिए, जब आप ये वाला 5th पार्ट करोगे तो 343
ये 7 का क्यूब होता है, ये दोनों जो है को प्राइम थे, तो 7 का क्यूब, दैट मीन्स द डिनोमिनेटर इज q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, so it is non-terminating repeating. That is the kind of decimal expansion which this number fifth part will have. Okay children, sixth part तो दिख ही रहा है, seventh part भी दिख ही रहा है. This is terminating क्योंकि सिर्फ 2 और 5 factors हैं. This is again non terminating क्योंकि 2 5 के साथ 7 भी आ गया है और ऊपर से कैंसिल आउट नहीं होता. अब जो गलती होती है वो होती है 8th पार्ट में, और चेक करो क्या गलती होती है. 6/15 सबसे पहले को प्राइम चेक करना है, तो दीज आर नॉट को प्राइम. 3 के दोनों फैक्टर्स हैं, कैंसिल करो. 3 2s are 6, 3 5s are. Now check. Q is 5, so it can be written as 5 to the power 1 into 2 to the power 0. तो चेक करो 5 to the power m into 2 to the power n फैक्टर्स हो गए. सो yes, it is terminating. अगर आप विदाउट को प्राइम करोगे, चेक करो, अगर मैंने को प्राइम चेक ही नहीं किया और मैंने कोशिश करी कि मैं इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करूं, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर एंड टेल यू द मिस्टेक. कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, क्यू को 15 लेके चलते हैं और 15 के फैक्टर्स करते हैं 3 5s are 15. सो वो लिख देते हैं कि दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n into 5 to the power m, so therefore it is non-terminating. But the concept is wrong. You should always know that चेकिंग सिर्फ तब हो सकती है जब पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम मीन्स कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होना चाहिए. सो दैट्स द मिस्टेक. सिमिलरली इसको भी पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट? दोनों 5 से जाते हैं. इसको भी आपको करना पड़ेगा, दोनों 7 से जाते हैं, राइट? उसके बाद आप चेक करोगे. ऑल राइट, दैट्स हाउ आई वॉन्ट यू टू डू क्वेश्चन नंबर 1 and 2. देन क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी सिंपल. चेक 3 तो क्लियरली आपको दिख जाएगा. Which of the following real numbers have decimal expansion as given below? The following real numbers ये 3 तरह के दिए हैं. In which case, in each case decide whether they are rational or not. If they are rational, then express in the form of p by q. And if they are rational and of the form p by q, what can you say about q factors? मतलब फिर q, ये तो हमें क्लियरली इसका आंसर तो हमें पता ही है. अगर वो रैशनल होंगे तो रैशनल में हमने क्या पढ़ा आज, 2 तरह के होंगे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, राइट? तो अगर वो टर्मिनेटिंग होंगे तो जो Q होगा वो 2 to the power n into 5 to the power m होगा. और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे तो Q will not be in the form of 2 to the power n into 5 to the power m. So let's talk about this. Check this. ये तो आपका टर्मिनेट हो रहा है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग क्योंकि खत्म हो गया, राइट? कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा. सो दिस इज टर्मिनेटिंग. सो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि जो Q होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, वो क्या फॉर्म में होगा, 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में, राइट? इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 फैक्टर्स होंगे. चेक दिस वन. दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. चेक करो, ये रिपीट भी नहीं कर रहा है. यहाँ पे सिंगल जीरो था, यहाँ डबल जीरो आ गया, यहाँ ट्रिपल जीरो आ गया फिर. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. जो अगर कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, दैट मीन्स इट इज अ इरैशनल नंबर, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर. सो सेकेंड पार्ट इज अ इरैशनल नंबर. क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रैशनल टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं. अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होंगे. चेक करिए, बार आएगा. तो अगेन ये क्लियर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो अगेन दिस इज अ रैशनल नंबर क्योंकि बार आ गया. और क्योंकि वो रैशनल नंबर है तो अगेन क्यू किस फैक्टर्स में होंगे, इट कैन बी, इट हैज अनदर फैक्टर, मतलब 2 और 5 के अलावा अदर फैक्टर भी हो सकते हैं, राइट? दैट इज हाउ वी विल से it is a rational number in the form of p by q where q has factors other than
2 and 5. So इसमें only 2 and 5, फर्स्ट केस में only 2 and 5, ये तो irrationally हो गया क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, एंड दिस क्योंकि वो रिपीटिंग है, राइट. This is a repeating, right? So it has factors other than 2 and 5. All right, children. So that is how we will come to know. We will discuss the irrationality, and in case of rationality we will be able to tell you whether it will have a terminating or non-terminating repeating decimal expansion. So that is all about this exercise and this chapter. If you still have any doubt, kindly mention in the comment below. I will surely get back to you.